Good morning, class. First of all, a very happy new year to you all. So, today we will start online class of computer also, and in this class we will start a new chapter number 11, more about the internet. So, in this chapter we will study about what is computer network, what are the different types of network, and what are the use and role of computers in the internet, various services on the internet, and what is network. So let's start with our chapter. And first of all, there is an activity given. Based on your previous knowledge, find 10 terms related to the internet in the following grid. So in this grid you have to find out the 10 terms which are related to the internet. Okay, so this you have to do yourself. I will also provide the answers, but first try to do yourself. This is your homework, and let's start our chapter. Till now, we have been dealing with a single computer. What about a situation in which there are many computers? Let's discuss in detail. So, it is telling that till now we were using a single computer. Now, as in our computer lab, you were using a single computer, mouse, keyboard, and all. So, think about a situation there are many computers. So, let's discuss about the particular given situation in detail. First heading related to this situation is computer network. So what is computer network? Please underline. A computer network is a group of computers linked to each other through wired medium or a wireless medium. So this is the definition of computer network. What is it saying? It is saying that computer network क्या है? It is a group of computers. Now the group of computers, they are linked to each other. It is a group now, so in group there are many people. Similarly, in the group of computers there are many computers, and those computers are connected to each other. Through what they are connected? They are connected with the help of wire or with a wireless medium, है ना. सो ये जो कनेक्शन है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का विद ईच अदर, दिस इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क में वेरियस कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, या तो वायर्ड मीडियम से, मीन्स विद द हेल्प ऑफ वायर, या तो वायरलेस मीडियम से. ओके, नेक्स्ट इज a network is a system that provides its user with unique capabilities. So सबसे पहले we studied what is computer network. So it was a group of computer where each computer is linked with other through wired medium or a wireless medium. Now network is a system which provides the users with unique capabilities. Now let's see what are the benefits of having a computer network. Okay, benefits of a computer network. Given below are some benefits of a computer network. First is connectivity, then data sharing, then device sharing, then communication. आप लोगों के फ़ोन में भी इंटरनेट होता है ना, कनेक्शन होता है ना, तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं. सो लेट्स सी कि कंप्यूटर नेटवर्क होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, फर्स्ट बेनिफिट इज गिवन कनेक्टिविटी. Network connects computers and users of those computers. So if you are having computer network, it means the users of those computers are also interconnected with each other with that network, है ना. अगर आपके घर में एक कंप्यूटर है और आपके किसी और फ्रेंड के पास कंप्यूटर है और किसी इंटरनेट या किसी और मीडियम के थ्रू आप दोनों कनेक्ट हैं उस कंप्यूटर की हेल्प से, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना विद दैट नेटवर्क. सो अ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग, शेयरिंग मतलब क्या होता है? अपनी चीज़ किसी और से भी शेयर करना. सो इन कंप्यूटर नेटवर्क हम क्या शेयर कर सकते हैं? डेटा. Networking allows easy sharing of information and resources. Like if you are using WhatsApp, so you can very easily share your pictures, music, or video files to your friend, na. So in computer network also, as there is networking, there is connection between the computers, so you can easily share the information and resources with each other. So computer network allows data sharing. First connectivity, next data sharing. The third is device sharing.
सो दिस इज़ द न्यू टर्म टू यू ऑल, डिवाइस शेयरिंग मीन्स अब डिवाइस कैसे शेयर कर सकते हैं. So let's read this. Networking facilitates the sharing of hardware devices. For example, multiple users can share a single hardware device like a printer. So जैसे हम डेटा शेयर कर सकते हैं वैसे ही हम डिवाइस एक फिजिकल कंपोनेंट है, उसको भी हम नेटवर्किंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं. देयर इज़ एन एग्जांपल गिवन फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट मल्टीपल कंप्यूटर यूजर्स हैं, और जैसे कि ऑफिस में देयर आर 3 कंप्यूटर्स एंड देयर इज़ अ सिंगल प्रिंटर, बट ये नेटवर्किंग के थ्रू उन दोनों ही मॉनिटर से हम उस एक सिंगल प्रिंटर का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं, है ना. सो दिस इज़ डिवाइस शेयरिंग. डिवाइस शेयरिंग में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स किसी एक डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं. अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हमें हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट प्रिंटर लेना पड़ता. जैसे इन योर कंप्यूटर लैब देयर आर 10 to 12 मॉनिटर्स बट अ सिंगल CPU, है ना. तो यहाँ पे वो जो CPU है, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हमें हर मॉनिटर के लिए सेपरेट CPU लेना पड़ता, बट ऐसा नहीं है. सो थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन ईजली शेयर द डिवाइसेस विद ईच अदर. सो बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रिंटर. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. The communication can be processed through instant messaging, email और video conferencing. So communication क्या है? Communication is basically आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चाहे वो orally कर रहे हैं, मैसेज करके कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे कर रहे हैं, रिटन कर रहे हैं. So that is communication. So with the availability of computer network, you can easily communicate with each other through direct messaging, email, video conferencing or any other means of communication which requires the connectivity. Okay. Now on the right corner of that page there is a brainstorm. Do you think computer networks are required in schools? Give reason. So think about it and write the answer of this question on this page with the pencil. Okay, कि क्या आपको लगता है कि स्कूल में कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है? अगर हाँ तो क्यों? मीन्स यू हैव टू राइट द रीजन्स हियर वाई द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर रिक्वायर्ड इन द स्कूल. अब आप सोचिए कि आपके स्कूल में कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों है और उसके अकॉर्डिंग पे यहाँ पर आंसर लिख दीजिए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क गिवन इन योर बुक. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फर्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज LAN, which stands for local area network. Underline the full form of LAN, local area network. Local area network connects network devices over a short distance and is managed by a single person or organization. A network in office building, school or home usually contains a single LAN. So LAN is basically a type of network which connects the multiple computers over a shorter distance. Okay, और इसको कौन ओन करता है? A single person or a organization. So the maximum limit the LAN can connect the various computers, maximum limit is inside a building. अब वो बिल्डिंग ऑफिस की भी हो सकती है, स्कूल की भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है. सो यूजली LAN कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, that's why it is termed as local area network. Next is metropolitan area network, means MAN. Metropolitan area network connects network devices over a city and covers a larger area than that of LAN. It connects the computers of the same or different cities. Cable network is an example of MAN. तो जैसे LAN क्या करता है, वो एक बिल्डिंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, बट MAN क्या करता है, ये एक सिटी में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है. लेट्स सपोज देयर इज़ अ बिल्डिंग जहाँ पे 10 to 15 कंप्यूटर्स हैं, तो उस बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमने LAN नेटवर्क का यूज़ किया. अब लेट्स सपोज देयर इज़ अ सिटी जहाँ पर ऐसे 50 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग्स में 10 to 15 कंप्यूटर्स हैं. सो उन 50 बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम MAN नेटवर्क का यूज़ करेंगे, बट हर बिल्डिंग के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमने LAN तो यूज़ किया होगा ना. नाउ MAN इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल LANs. जैसे हमने बिल्डिंग में कंप्यूटर को कनेक्ट किया तो हमने LAN नेटवर्क का यूज़ किया. अब हम
कई बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं ओवर अ सिटी या फिर मोर देन अ सिटी, हम कई बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना कि मैन नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल लैन्स। बहुत सारे लैन को मिलाकर मैन बना है। बहुत सारे कंप्यूटर्स को, एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया तो उसको हमने लैन नेटवर्क का नाम दिया, क्योंकि वो एक शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करके उन कंप्यूटर्स को ऐड कर रहा था। अब मैन में हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया और हर बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, तो इसका मतलब हमने बहुत सारे लैन्स को कनेक्ट करके मैन बनाया, है ना। तो लैन की जो रेंज है वो मैन से कम है और मैन की जो रेंज है वो लैन से ज़्यादा है। बेसिकली ये एक सिटी या दो या उससे ज़्यादा कुछ सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका है केबल नेटवर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। जो आपके घर में टीवी चलती है ना, तो केबल नेटवर्क वो किसका एग्जाम्पल है? मैन का एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। A wide area network connects network devices over a country and covers a larger area than that of WAN. Internet is an example of WAN. तो WAN stands for wide area network और ये कौन सी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स द डिवाइसेस ओवर अ कंट्री। जैसे लैन क्या कर रहा था? एक बिल्डिंग में स्टैब्लिश्ड सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा था। मैन क्या कर रहा था? एक सिटी में सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा था। अब वैन क्या कर रहा है? एक पूरी कंट्री में सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। जैसे हमने छोटे छोटे लैंड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? एक मैन हो गया। अब ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे लैंड, मैन, इन सब को कनेक्ट हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वैन। सो जो वैन है इट कनेक्ट्स द डिवाइसेस ओवर अ कंट्री। ये जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ये पूरे कंट्री को एक्सेस देते हैं। सो सबसे छोटा यहाँ पे जो नेटवर्क है एरिया वाइज, दैट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज क्या है? एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। उसके बाद उससे बड़ा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन टर्म से याद रखना कि ये सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो रेंज है वो क्या है? ओवर अ सिटी। नाउ उससे भी बड़ा क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड इट मीन्स यहाँ से याद रखना कि ये कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। मीन्स ओवर अ कंट्री ये मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा है नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है? केबल नेटवर्क, टीवी केबल नेटवर्क। एंड लैन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना, एक मेन कंप्यूटर ऑन होता है तभी बाकी सब ऑन होते हैं, तो वो लैन का एग्जाम्पल है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क: लोकल एरिया नेटवर्क, metropolitan area network, and wide area network. So that's it for today. Please revise the topics and complete the activity on page number 108. That's it for today. Thank you. Have a nice day.